patience to learn. But Have patience to learn. Punji, address the chair. ਹਾਂਜੀ। Don't address them. Address the chair. So, Deputy Chairman sir, in Kokrajhar, in Borgori, the share of Hindu population in between 1991 and 2001 dropped by 1%, and those of Muslims went up by almost 26% because of infiltration. In Kokrajhar, again, in Rotama Taluka, the share of Hindus dropped by 16%. 16% there was a drop in their population, and the Muslim population rose by almost 26%. In Dhubri, in Bagri Bari, the Hindu population share of Hindus in population dropped by minus 4.11, and that of Muslims went up by 31%. And in Chapar again in Dhubri, the Hindus rate of growth of population dropped by 2.17%, and that of Muslims went by 37.39%. I have a whole lot of figures. You know, you have to go to the underlying causes of this unrest. If you just look at the symptoms and do not go into the real reasons, you will never be able to solve the problem. Deputy Chairman, sir. You can reply at your... Next you are speaking, then why do you interrupt now? No. It won't go on record. No. No, Kalita ji, no. You are the next speaker, then why do you want to do this? No. Please, not allowed. Sir, हमारा टाइम तो वही ले रहे हैं सर. डिप्टी चेयरमैन सर, फिर कांग्रेस ने और जिसे कहना चाहिए, ये घुसपैठियों को बुलाने का प्रबंध किया. एक IMDT एक्ट लेके आए, और IMDT एक्ट, मेरे पास समय नहीं है कि मैं उसके अलग अलग प्रोविजन में बताऊं. IMDT एक्ट का सीधा सा अर्थ है कि जो घुसपैठिया आ जाए उसको वापस सरकार का कोई अधिकारी कर ही नहीं सकता. और वो IMDT एक्ट जो था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्ट्राइक डाउन हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करते हुए कहा कि दिस वाज ए इनविजिबल इन्वेजन ऑन इंडिया. और इस मामले में जो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा, चेयरमैन सर, वो मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूं. 2 पैराग्राफ हैं. In a case involving as many as 61 people who had been found to be foreigners, the court said that most of them were able to avoid proceedings against them as well as their deportation from India, and that they have incorporated their names in the voters list on the basis of which they must have cast their votes. One of them, with a Pakistani passport, even contested the state assembly election in 1996. Going further than any other judicial opinion so far, the court said, I quote, large number of Bangladeshis in the state now play a major role in electing the representatives both to the legislative assembly and parliament, and consequently in the decision-making process towards building the nation. Not mincing words, the court described their political influence that of kingmakers. उपसभापति जी, इनकी नीतियों का परिणाम यह हुआ कि हाई कोर्ट को भी यह कहना पड़ा कि आज की सरकार असम में कुछ चुनी जाएगी तो उसमें विदेशी निश्चित करेंगे कि कौन सरकार में आएगा. विदेशी निश्चित करेंगे क्या कानून बनेगा, और विदेशियों की भूमिका कोर्ट के शब्दों में किंग मेकर की होगी. उपसभापति जी, ये स्थिति, मेरे पास आंकड़े और भी हैं परंतु समय नहीं है. मैं 2 बातें और कहना चाहता हूं. आपका नाम नहीं है? प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आपने, आपका पार्टी असम गए थे. उन्होंने 300 करोड़ रुपए की राहत घोषित की. राहत में ये नहीं बताया कि राहत किसको दी जाएगी. अगर ये पैसा जो है राहत का ये घुसपैठियों में बांटा जाता है तो उसके 2 परिणाम होंगे. एक तो भारत सरकार घुसपैठियों को वैधता प्रदान करेगी, और दूसरा ये सीधा निमंत्रण होगा जो बांग्लादेशी घुसपैठिए दूसरी तरफ सीमा के पार बैठे हैं कि आप एक बार आ जाइए इधर, भारत सरकार आपका रेड कारपेट के साथ स्वागत करेगी. उपसभापति जी, only 2 minutes remaining. Sir, you please adjust the time which was taken by interruption. Sir, interruption तो इतना हो गया. अच्छा. And, you can reply. And sir, I was very disappointed
by the statement of the Honorable Home Minister. He looked at the problem just as a law and order problem. Can anybody in his senses forget the context in which this entire violence took place? आप इसको क्या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम मानते हैं और उसके बाद इस तरह के प्लेटिट्यूड देना कि ये तो सभी कम्युनिटीज को मिलकर रहना चाहिए? ये क्या भाषण हुआ? जो लोग विदेशी घुसपैठिए हैं, स्थानीय लोगों के घरों पे कब्जा कर रहे हैं, उनकी भूमि पे कब्जा कर रहे हैं, उनके सम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं और उनकी पहचान के लिए खतरा बन गए हैं, उनको और जो यहां के भारत माता के पुत्र हैं उनको एक स्तर पे रखना घुसपैठियों की मदद करना है। और इसलिए गृह मंत्री जी का जो बयान था वो बहुत निंदाजनक था। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले 3-4 डिमांड्स रखना चाहता हूं। लिखकर देना। मैंने पहले निवेदन किया, घुसपैठिए जो हैं वो 50 किलोमीटर का जो खुला बॉर्डर है उससे आते हैं। उत्सवपति जी, मेरा सरकार से निवेदन है, वोट बैंक को छोड़ें। ये जो चश्मा पहन रखा है इन्होंने सांप्रदायिकता का, इसको उतार के समस्या को देखें और बॉर्डर के ऊपर, सीमा के ऊपर प्रॉपर, जैसा कि माननीय राजीव गांधी जी ने उस समय देश के साथ वायदा किया था, उस तरह से पूरी की पूरी सीमा को, जैसे पंजाब और कश्मीर के अंदर फेंसिंग हुई है, वहां पे तुरंत फेंसिंग करवाएं और उसकी एक समय सीमा रखें। दूसरा, कोई नहीं जानता इस देश में कि बांग्लादेश से कितने घुसपैठियां हैं, संख्या करोड़ों में। इन करोड़ों लोगों को आज देश से बाहर निकालना भी कठिन है क्योंकि बांग्लादेश उनको वापस नहीं लेगा। मेरा निवेदन है कि इन लोगों को स्टेटलेस पर्सन डिक्लेयर किया जाए। पहले इनको चिन्हित किया जाए, दे शुड बी आइडेंटिफाइड फर्स्ट एंड देन दे शुड बी डिक्लेयर्ड एज स्टेटलेस पर्सन हु हैव नो राइट, जस्ट 2 minutes सर, हु हैव नो राइट to vote, who have no right to own property and who have no right, they should be defranchised. इनको stateless person बनाया जाए। और इसका एक प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर। उपसभापति जी, 1947 में पश्चिमी पंजाब से करीब 30,000 परिवार आए थे, अब उनकी संख्या शायद 2.5 लाख के आसपास हो गई। वो 60 साल से शरणार्थियों की हालत में जम्मू कश्मीर में रहते हैं। किसी को प्रदेश के अंदर वोट देने का अधिकार नहीं, किसी को संपत्ति अधिग्रहण करने का अधिकार नहीं। स्टेट असेंबली में है क्या? आर दे एंटाइटल्ड टू वोट फॉर असेंबली? आर दे एंटाइटल्ड टू वोट फॉर असेंबली? आपने चैन दिया नहीं 60 साल में उनको संपत्ति देने का अधिकार नहीं, उनको सुरक्षा नहीं है। प्लीज कंक्लूड। प्लीज कंक्लूड। मिस्टर पुंछ, प्लीज कंक्लूड। कंक्लूड कीजिए, कंक्लूड कीजिए। आई एम नॉट इंडिंग। नो प्लीज, प्लीज प्लीज कंक्लूड कीजिए। कंक्लूड करो, कंक्लूड करो। डोंट डिस्टर्ब प्लीज। नो प्लीज, प्लीज कंक्लूड। आप लोग बैठिए, डोंट ट्रबल। अगर आप लोग बैठिए, खन्ना जी बैठिए। उपसभापति जी, कंक्लूड प्लीज, आई जस्ट कंक्लूड प्लीज। ना डोंट डिस्टर्ब, प्लीज लेट हिम फिनिश। नो प्लीज, अरे नाराज मत हो, बैठो। नो प्लीज। उपसभापति जी, यदि भारत के अंदर जिन 2.5 लाख लोगों को इस देश की नागरिकता लेने का अधिकार, नो तरुण विजय प्लीज, तरुण प्लीज, तरुण प्लीज बैठे। 2.5 लाख लोगों, जल्दी कंक्लूड कीजिए। या नो प्लीज, नो डोंट वेस्ट टाइम प्लीज, दिस इज mere wastage of time. Sit down please. What is this? Not going on record. That will not go on record please. तो इन लोगों को भी स्टेटलेस पर्सन डिक्लेयर करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इनको यहां संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने वोटर लिस्ट में अपना नाम रखा है, 2 मिनट सर, और जिन लोगों ने रखा है, दे मस्ट बी फ्रेंचाइज इमीडिएटली। और उसके बाद किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जस्ट लास्ट पॉइंट सर। नो प्लीज। उपसभापति जी, मैं अंतिम बात 1 मिनट में कह के समाप्त प्लीज करता हूं। कंक्लूड,
Please conclude. देखिए, ये अभी तक बोडो समस्या कही गई है। ये बोडो की समस्या नहीं है, ये कोकराझार जिले की समस्या नहीं है, ये असम की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। और हमको ये रवैया लेना होगा जब किसी भी भारतवासी के ऊपर, चाहे वो बोडो हो, और उसके ऊपर कोई विदेशी घुसपैठिया बांग्लादेश से आके हमला करता है, तो वो उस व्यक्ति पे हमला नहीं है, वो पूरी भारत माता पे हमला है, पूरे भारत पे हमला है। अगर ये रखेंगे तो असम की समस्या अब बैठिए। ओके, असली